Why is that so? Al-Qaeda is a renegade ideology. They have a problem. They seriously have a problem. और इनको डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान should make a Muslim bloc, collect a group of people and ulama and scholars and countries, and you should try to talk to them. अगर वो बात नहीं करते हैं तो फिर उनको हमें isolate करना पड़ेगा, because they are directly playing into the hands of these Zionists. We have to denounce them. वो बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचा है। और ये दहशतगर्दी की एक पूरी तहरीक हम पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं, हमारे दुश्मनों को हो रहा है। So if only people could understand that. This is the irony. You see, हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पे रिलीजियस स्कॉलर्स पाकिस्तान के जो इसके खिलाफ बात करते हैं, ये उन्हें कत्ल करा देते हैं। मसलन मौलाना गुल हसन पेशावर में उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स के खिलाफ बात की थी। That is why it is very well known, and that is why he was assassinated. And our media, this is where the role of media comes in. Media is not confronting them. Media is not taking on them. और यहाँ पे लोग खौफ में मुब्तला हैं, कोई बात नहीं करना चाहता उन इश्यूज पर जहाँ उसको खतरा महसूस होता है। We are just confusing Al-Qaeda with Islam. And this what happens, you see, when radical ideologies begin to represent the mainstream faith, this is what's happening here, and they're not representing Muslims in Pakistan. Taliban are a different ideology. Al-Qaeda is a different ideology. वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। I'm so glad finally somebody came out and said this. And this is something that we are going to discuss in detail in the next program. The war on terror which the US is waging in the world is not a war on terror. ये US strategic objectives हैं जिसके लिए American policy institutes ने पहले vision दिया था इनको 9/11 से पहले, और 21वीं सदी की पूरी global US strategy इस umbrella के तहत है। तो जब पाकिस्तान ये कहता है कि we are a front line state in war on terror, in fact it's stupid to say this. War on terror is just a mere propaganda. It's just a propaganda. It's not a war on terror. अब चाइना के खिलाफ जो लड़ रहे हैं तो war on terror तो नहीं कर रहे हैं। जब when they're encircling the Russia और anti ballistic missile shields लगा रहे हैं ईस्ट यूरोप में और एशिया पैसिफिक में, so that's not war on terror. This is the global nuclear war which they are preparing for. और पाकिस्तान is in a very strong position. मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसमें घबराने या डरने की। It's somehow hard to believe, but yes, if you look at it from this angle, you analyze it. हम एक दिन में अमेरिकन वॉर एफर्ट्स अफगानिस्तान में कोलैप्स करा सकते हैं, एक दिन में। So I don't. This is where now next government is coming. The parliament will be there. The nation has to get united. Should we have hopes? We should have very strong hopes. Very high hopes. We had very high hopes because अब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का मसला पड़ गया। 9/11 का सिनारियो अब नहीं है जब पूरी दुनिया में मॉरल हाई ग्राउंड अमेरिकन का था। Now they have lost the moral high grounds. उन्होंने अफगानिस्तान में जंग के जो कत्ल गारत किए और झूठ बोल के जो weapons of mass destruction पे जो अमेरिका पे हमले किए, now they have lost the moral high ground. अब पूरी दुनिया इनको कह रही है कि इन्होंने झूठ बोले थे। ये 9/11 इन्होंने खुद कंडक्ट कराया था। उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं और दुनिया में वॉर ऑफ टेरर की अम्ब्रेला में ये पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करके फोर्स रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। सो नाउ दे हैव लॉस्ट द मॉरल हाई ग्राउंड। उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इन जंगों ने इनको शदीद नुकसान पहुंचाया है, और अब पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है जिसमें फौरन 9/11 के बाद घबरा के हमने कुछ फैसले कर दिए थे। सो नाउ देयर इज वन क्वेश्चन आई वुड रियली वांट टू पुट फॉरवर्ड। डू यू थिंक देयर इज एनी होप, कोई उम्मीद की किरण है अमेरिका की नई आने वाली क़यादत में कहीं कि शायद मामला बेहतर हो सकें उनके एंड पर? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, चाहे रिपब्लिकन आए या दूसरे डेमोक्रेट्स आए, Zionists control the US foreign policy. They will still in whatever form. Zionist उनकी foreign policy control कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो होना है यहाँ से होना है। Pakistan will have to make it more difficult for them. Simple as that. We have to fight it out. We have to fight it out ourselves. आपने पिछले प्रोग्राम में सवाल किया था हमारा दोस्त कौन है, हमें अपना दोस्त खुद बनना पड़ेगा। जब हम अपना दोस्त खुद बनेंगे, then we can have many friends in the region. Right now, we must only rely on ourselves. We rely on ourselves, on our faith, on our God, on our nation. And on our people, and hopefully जब अगली हुकूमत हमारी आएगी उसको कुछ सीरियस फैसले करने पड़ेंगे अफगान पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि now is the time कि we undo the damage we have done. यानी जो डैमेज हम कर चुके हैं अपने साथ भी और उनके साथ भी, उसको undo करें। 9/11 के बाद समझ में आती है बात, उस वक्त नहीं था हमारे पास। जो फैसले किए गए वो जल्दबाजी में हुए, लेकिन वाकई there were reasons कि वह जल्दी में ये फैसले किए गए, लेकिन now we have time. So I am very hopeful. What we are saying is कि इंशाअल्लाह ये मैं एक उम्मीद दिलाने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम ठीक फैसले कर लें अगली हुकूमत के आने के बाद अगले चंद दिनों में, तो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा अहमियत है और हमारी इतनी ज़्यादा ताकत है अल्लाह के फजल से कि हमारी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। ये बात मैं सिर्फ ख्याल में नहीं कह रहा हूँ। वी आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज सच कि इफ़ वी से नो, इफ़ वी ब्लॉक द रोड, इफ़ वी ब्लॉक द वाटरवेज, इफ़ वी ब्लॉक द सप्लाई, इफ़ वी प्ले आवर कार्ड्स वेल, कि दुनिया को हमारी मर्जी लेनी पड़ेगी इस पूरे रीजन में फैसले करने से पहले। एंड वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू डू दैट। अल्लाह के फजल से जो थ्रेट था
इनिशियली 9/11 के बाद वो टला। ज़ायनिस्ट हैव बीन ऑन द डिफीट, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान के बारे में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। ज़ाहिर है वो इंडियंस चाह रहे थे कि हम पे अमेरिका से हमला करा दिया जाए, और इसराइल चाह रहा था कि डिप्लोमेट इस सारी अम्ब्रेला में हमसे ताल्लुकात कायम कर ले, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये सब कुछ नहीं हुआ, नथिंग दैट दे वांटेड। सो वाइल एट वन एंड हम हुकूमत को इल्ज़ाम या हम हुकूमत से क्रिटिसाइज़ करें जनरली फॉर द मिस्टेक्स दे डन इन अफगानिस्तान, वी शुड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू द फैक्ट कि पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट किया गया। And Zaid, if we say no, if we stand up and we say no, do you think in this event there is a possible nuclear confrontation as well? Could we be in the line of fire then? देखिए, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस वक्त तक दे विल नॉट मेस विद अस। वो हमारे साथ उस वक्त छेड़छाड़ करेंगे कि जब वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ले लेते हैं, इराक के साथ जो इन्होंने किया था। So for as long as we have a nuclear potential, we don't need to worry. We don't need to worry. As long as our missiles can reach Israel, and as long as our missiles can hit the bases in the region, which they can now, mashallah, they'll not mess with us. So वो हमें अंदर से कमज़ोर करेंगे, हमें खाना जंगी करवाएंगे, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर वेज करेंगे, हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करेंगे, दहशतगर्दी की कैंपेन खुद कराएंगे और प्रोपेगेंडा ये करेंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स उनके हाथ में गिरने वाले। So these kind of things, which if the nation understands the bigger game, अगर इस सारे बड़े खेल को कौम समझ जाती है, हमारा मीडिया समझ जाता है, हमारे थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स इस बात को समझ के बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पे बन जाती हैं, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। I think this is the effort that we are trying to do here. फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 16 करोड़ की आबादी एक न्यूक्लियर मुस्लिम पावर हैं, nobody can mess with us, nobody can mess with us, inshallah. So I think this very much sums up our show for today. आप हमें लिखिए, हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstax.biz। अपने हर किस्म के सवाल हमें भेजिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर एज मच एज वी कैन। अपने एक्सपर्ट जैद हामिद साहब को और हिना महराज को इजाज़त दीजिए। अगली बार मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि वी विल हेयर अ लॉट फ्रॉम यू एंड वी विल इन्फॉर्म यू ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।